Hello students, welcome back. Children, today as you can see on your screen, we are towards the third section from a syllabus. The first two sections which were related to prose, the second one poetry. We have seen two lessons and two poems, right? Now, today's lecture children, we will just move across the section 3, and as you can see on your screen, as I said, it's expansion of ideas. Children, expansion of ideas may, first of all, we'll just try to solve some icebreakers and then move ahead with the understanding of the lesson. This will come like writing skills, children. Lots of things that we are going to study. Email writings, comparing कैसे होता है, speech writing क्या होता है, views, counter views कैसे लिखे जाते हैं, right? So we'll be learning about all that. But here, let me explain to you what is this expansion of ideas. Icebreakers में बच्चों लोग, the first activity that is given to you here is something related to uh, the word seasons. Many times, children, we come across that word season, and when we come across that word season, season word children is actually used in a very different way. It could cannot different meanings in different sentences or different places. Okay, so ये अपना जो पहला वाला activity है, this is related to the word season. Okay, now what do you know about the word season? And as they have given the activity here children, what have they asked us to do? See, discuss with your partner the different ideas connoted by the word season. मतलब एक ही वर्ड है चलो सीजन, उसका अलग अलग मीनिंग्स क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ सिंपल सा उसका मीनिंग बता दूं, तो चिल्ड्रन, इट वुड बी द टाइम ऑफ द ईयर ना। तो सबसे पहला जो मीनिंग आता है वर्ड सीजन का, इट इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। मतलब साल का कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना, उसको हम लोग सीजन बोलते हैं। जैसे we know that our years have been divided into three different seasons that we have. Suppose we are just getting over with monsoon, right? अच्छा, and we are towards the winter, और जैसे ही winter खत्म होता है तो we will be experiencing scorching heat, and that is something related to the summer. ये एक मीनिंग होता है वर्ड सीजन वर्ड का। अच्छा, और एक आध वर्ड देखने के लिए जाए हम लोग, तो sometimes a particular activity children, just listen to what I'm saying, a particular activity can also be considered as a season. जैसे भी चलो, अभी जैसे दिवाली का टाइम आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग का सीजन चालू हो गया है। कौन सा सीजन? हार्वेस्टिंग सीजन। या फिर सपोज एग्जाम्पल के लिए जैसे बारिश आती है जून के महीने में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सोइंग सीजन चालू हो गया है, राइट? अच्छा, इट कुड बी दैट वे। या फिर एग्जाम्पल के लिए एक बर्ड्स का माइग्रेटिंग का सीजन चालू हो गया है, इन दैट वे। समटाइम्स द वर्ड सीजन ऑल्सो मीन्स एडिंग फ्लेवर टू फूड, so it is something like seasoning of food। क्या बोल सकते हैं इसको? सीजनिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीजन। और भी बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं चिल्ड्रन, जैसे कि आपने देखा रहेगा गेम्स का भी सीजन होता है। यस, कोई एक्टिविटीज होते हैं ना, जैसे कि बिग बॉस सीजन 9, या फिर बिग बॉस सीजन 10 करके आता है। डांस इंडिया डांस सीजन 3। अच्छा, तो इट वुड बी अ पर्टिकुलर पार्ट दैट वी हैव। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं चिल्ड्रन। इट्स अ pun that we have, a single word with different meanings that we have। इसको हम लोग नाउन करके भी यूज कर सकते हैं, और सीजनिंग ऑफ फूड में उसको हमने क्या एज अ वर्ब भी यूज किया हुआ है, राइट? यस, आप भी और कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स ढूंढ सकते हो इसके वजह। नाउ द सेकंड एक्टिविटी दैट दे हैव गिवन इज कि यू कैन सिलेक्ट अ सीजन ऑफ योर चॉइस। ओके, आपके पसंदीदा कोई सीजन को सिलेक्ट करो और ये डिटेल्स भरने हैं आपको। So this is just like an activity children that we can complete.
The first thing that they have mentioned is कि season कौन से time में आता है साल के. So what is the time of the year that we have? So time of the year में जैसे कि for example children, if you're talking about the monsoon season, चलो तो हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करना है. तो we are going to discuss relating or regarding monsoon. So can you tell me what time of the year that you get this season? Yes, most of you all are aware. It goes from जून से लेकर सितंबर तक. ओके, ये अपना टाइमिंग होता है चिल्ड्रन. किसका? मॉनसून सीजन का. नो, दे आर आस्किंग यू अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स दैट पीपल सेलिब्रेट ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. अगर हम लोग क्रॉप्स की बात करें चिल्ड्रन, तो many people they actually go to cultivate certain things like have you heard about children paddy cultivation? इसके बारे में सुना है आपने? पैडी कल्टीवेशन के बारे में. पैडी का मतलब भी पता है सबको. इट्स जब उसको खेत में उगाया जाता है राइस को, तो इट इज रिफर टू एज पैडी. तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग मेंशन करते हैं चिल्ड्रन, तो the first crop that is basically cultivated is paddy. अच्छा, along with that children, there are many other crops which are grown. जैसे कि suppose if you are talking about the groundnuts, so that can also be grown during the monsoon season. नाचनी करके आता है बच्चे लोग, बाजरा आता है, ज्वार आता है, right? So all these things are basically grown during the monsoon season. अच्छा, मॉनसून सीजन में बच्चों कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? तो देयर कुड बी मेनी फेस्टिवल्स. द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट celebrated festival, that is Ganesh Chaturthi, right? Acha. Along with that, you could also have festivals like Raksha Bandhan. Okay, ये कुछ festivals celebrate किए जाते हैं. In fact, वो जो month आता है श्रावण का, it's a beginning of the festival seasons among the Hindus, right? Acha. So you can add up to some points to that, children. Then they are asking you about what are the different features of this season. If secondly, what are the changes that you observe in the environment? तो सबसे पहले जैसे कि for example children you are talking about the climate. तो month of May में पूरा का पूरा scorching heat, okay, and all those plants and all they turn out dusty, they look reddish in color, right? Acha, and the weather is not so favorable because we like there's a lot of dehydration that takes place, very hot temperatures that we experience. Okay, but when it comes to monsoon season children, suddenly climate को आप chill out करते हुए देखोगे. So you find those cool breeze blowing around. तो cool breeze आपको मतलब like experience होगा. Okay, और suddenly for example सब कुछ एकदम ठंडा हो जाता है, chilled out. अच्छा, weather children, you can observe lots of clouds in the sky and the temperatures they start falling. मतलब you find that matlab you will feel shivering sometimes due to the rains and all, right? अच्छा, what are the advantages and disadvantages? हर एक सीजन अपने खुद के एडवांटेजेस लेके आता है और अपने खुद के थोड़े डिसएडवांटेजेस भी लेके आएगा. तो एज फार एज एडवांटेजेस आर कंसर्न चिल्ड्रन, अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो वी कैन से कि लाइक दिस इज वेरी फेवरेबल. फार्मर्स बच्चे लोग इंतजार करते रहते हैं ना, किसका? बारिश का. तो एग्रीकल्चर के लिए, okay, they just want the rains because they are desperately waiting to get into those agricultural activities, right? अच्छा, तो we will be protected from that scorching heat as I said, क्योंकि cool climate होता है तो heat से बच जाते हैं हम लोग. अच्छा, जहाँ पे भी वाटर का क्राइसिस होता है, those problems will be solved because बारिश का पानी मिल जाएगा हम लोगों को. अच्छा, and everywhere children, wherever you observe, only one thing that you can see, and that is something like greenery that is spread around. ऐसे कुछ एडवांटेजेस होते हैं. बर्ड्स एनिमल्स जो अब तक पानी के लिए तरस रहे थे, तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन दे विल आल्सो बी saved. So almost like everyone gets a benefit out of that children. Okay,
लेकिन फिर इस सीजन के चिल्ड्रन वी कुड आल्सो हैव सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सीजन, क्योंकि मॉनसून्स आर वेरी टेरिफिक. ओके, समटाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड लाइक लास्ट ईयर ही हमने बहुत बड़े फ्लड्स एक्सपीरियंस किए थे ना चिल्ड्रन, महाराष्ट्र एंड अदर एरियाज में. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम डिसएडवांटेजेस, तो मॉनसून का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है विच लोग फ्लड्स. ओके, along with that floods we could also have एरिया जहाँ पे आपको तूफान एक्सपीरियंस होते हैं, तो साइक्लोन्स आते हैं चिल्ड्रन. देन देयर इज फेलिंग ऑफ ट्रीज. ओके, अपरूटेड होते हैं, पेड़ वगैरह गिर जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे many people get drowned, या फिर the animals, there are lots of losses that are being caused here we can say. Okay, कभी कभी जो बड़े से बड़े डैम्स होते हैं वो टूट जाते हैं, and all those things can lead to lots of problems that we can say children, right? Yes. Now the next activity in line children here is you come across lots of words associated with the word season. जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, यहाँ पे एक आपके लिए करके दिया गया है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स. क्या बोला है? मेक हे वाइल द सन शाइन्स. व्हाट डज दैट मीन चिल्ड्रन? कि when there is an opportunity you should try to grasp that opportunity. क्या करना चाहिए आपको? अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना चाहिए. अच्छा, because once you miss out on that opportunity children, then you all are aware you won't be getting that opportunity for the second time. Opportunity never knocks twice. We have to be ready to grasp that opportunity, right? अच्छा, then there could be some proverbs children जहाँ पे मतलब night and day, या for example कि like when we say कि like sun से related कुछ words, या for example moon से related कुछ proverbs होते हैं, and we are well acquainted with these words children जिनको हम लोग generally proverbs करके use करते हैं. क्या करके use किया जाता है? Proverbs करके. So children, we can just try to make some proverbs children which will be associated with the word season, right? अच्छा, now जैसे कि यहाँ पे बच्चों लोग इन्होंने यूज किया हुआ है कि make hay while the sun shines, and as I said about the meaning that you get out of it. So in a similar way children, you could try to make. Okay, this would be some of the activity that you can try on your own children. आप थोड़ा सा कुछ ट्राई कर सकते हो इसके लिए. ओके, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज आई कैन टेल यू हाउ यू आर सपोज टू गो अराउंड, बट मैं चाहता हूँ कि कभी तुम लोग भी थोड़ा सा काम करो, क्योंकि दिस इज ऑल गोइंग लाइक स्पून फीडिंग. ओके, तो आप ट्राई कर सकते हो. मतलब सीजन वर्ड को लेके, कोई भी वर्ड जो सीजन से एसोसिएटेड होता है बच्चों लोग, उसको लेके आप यहाँ पे प्रोवर्ब लिखोगे. प्रोवर्ब मतलब क्या होता है? कहावत होती है बच्चों लोग, और उसको लेके हम लोग कुछ सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. ओके, सो यू कैन जस्ट ट्राई आउट विद दैट. यस, नीचे का एक्टिविटी अगर आप पढ़ोगे तो गेस द मीनिंग ऑफ द above proverbs and write them down along with the sentences of your own. अपने खुद के sentences में use करने के लिए बोला गया है. ठीक है, so you can take it like an activity. Okay, then discuss with your partner the following topics and express your views and opinions in favor and against the topic. Okay, now this is something interesting children कि we have come across writing skills का एक topic रहता है children which is known as view and counter view. क्या बोला जाता है? View and counter view. So children, whatever these topics that are given to you today here, इसको लेके हम लोग कुछ discussion कर सकते हैं. On one side children, if I write this word that is view, or on another side children, I will mention this word that is known as counter view. Now, what are we supposed to exactly do here children? कुछ topics दिए देखो. सबसे पहला जो topic दिया है आपको, are sports essential in junior colleges? जूनियर कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एसेंशियल है क्या? तो चिल्ड्रन, इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू कुड एक्चुअली हैव टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ना. दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते क्या है चिल्ड्रन? जैसे कि अगर आप व्यू लिखने के लिए जाओगे तो आपको क्या बोलना है
कि स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल इन जूनियर कॉलेजेस। ओके, ऐसे बोला था ऑल वर्क या फिर ऑल स्टडीज, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। मतलब कोई भी बच्चा हो, चलो अगर सिर्फ काम ही करता रहेगा, कभी खेलेगा कूदेगा नहीं, तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बिकम अ डल पर्सन इन हिज लाइफ। अच्छा, sports children, they keep you healthy mentally as well as physically, which is also going to positively affect your studies in your junior colleges, right? And only studies are of no use, children. We require overall physical mental growth of the children. That is why we can say sports are very essential. अभी आपने देखा, मैंने पॉजिटिवली बात किया, तो इसको हम लोग क्या करके रिफर करते हैं चिल्ड्रन? इट विल बी नोन एज व्यू बोलते हैं उसको। लेकिन उसी टॉपिक को लेके इफ आई जस्ट वांट टू गो अगेंस्ट इट, अगर मैं उसको काउंटर व्यू में प्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो हाउ विल आई राइट द सेम टॉपिक चिल्ड्रन? जैसे कि आर स्पोर्ट्स एसेंशियल इन जूनियर कॉलेजेस लिखा है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि लाइक नो, द स्पोर्ट्स आर नॉट नेसेसरी इन जूनियर कॉलेजेस। स्पोर्ट्स आर डिफरेंट, स्टडीज आर डिफरेंट, डोंट मिक्स देम अप विद द स्टडीज, because there are many children who only focus on sports and then they neglect the studies. And I hope, for example, like studies should be given first priority, sports should be given second priority. Acha, many times children, students feel like if I participate in sports I might get some grace marks, and then they know कि like I don't have to focus on my studies, और ये studies अगर affect होंगे तो सिर्फ sports को लेके हम लोग कहाँ पे नहीं पहुंच सकते। So present scenario में I feel that sports are not necessary in junior colleges। अच्छा, ये मैंने काउंटर किया है बच्चों उसको, लेकिन आप प्रूव कर सकते हैं सब चीजें। अच्छा, इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, दे आर आल्सो एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको पॉइंट्स दूंगा ये सब का चिल्ड्रन ना। आर कॉलेज इलेक्शंस नेसेसरी इन जूनियर कॉलेजेस? क्या बोला है? जूनियर कॉलेजेस में कॉलेज के इलेक्शंस जो होते हैं ना, काउंसिल इलेक्शंस, जहाँ पे आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन किया जाता है बच्चों लोग, अलॉन्ग विद दैट दे आल्सो हैव अ जनरल सेक्रेटरी हु इज सिलेक्टेड, या फिर जनरल रिप्रेजेंटेटिव। तो जूनियर कॉलेजेस में इलेक्शंस होने चाहिए क्या? अच्छा, अगर आप बोलोगे कि इलेक्शंस होने चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यू। तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, यस, इलेक्शंस होने चाहिए। अच्छा, क्यों होने चाहिए? यू कुड से लाइक दिस कि लाइक वी ऑल लिव इन अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री। अच्छा, देयर कम्स अ टाइम चिल्ड्रन व्हेन वी अचीव 18 इयर्स ऑफ एज एंड देन वी आर एलिजिबल टू वोट। फिर आपका वोटर्स आईडी तैयार होता है ना। अच्छा, अगर ये सब के बारे में इमेजिन करो कि आपको स्कूल्स कॉलेजेस से थोड़ा नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करते हैं हम लोग, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, अच्छा वो रिप्रेजेंटेटिव से हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा के ले सकते हैं, अच्छा सब लोग मिलके कैसे कॉलेज का ग्रोथ करा सकते हैं, ये सबका अगर एक ट्रेनिंग मिलेगा, तो मैं तो बोलता हूँ कि लाइक काउंसिल इलेक्शंस वुड एक्ट लाइक अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर डेमोक्रेसी, और इसीलिए जूनियर कॉलेजेस में इलेक्शंस लेने बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन चिल्ड्रन इफ यू गोइंग टू मेंशन अबाउट द काउंटर व्यू, तो हम लोग बोलते हैं क्लियर कट नो, वी शुड नॉट मिक्स स्टडीज विद पॉलिटिक्स। इलेक्शंस मतलब देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स, देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस व्हिच कम अलोंग विद पॉलिटिक्स। जैसे कि इलेक्शंस आ गए मतलब वहां पे बच्चे लोग मेजॉरिटी ऑफ द रॉन्ग डूइंग्स आर इंक्लूडेड विद दैट वर्ड इलेक्शन, सब गलत। तो यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, पैसा खिलाना, वोट के लिए किसी को धमकाना होता है। अच्छा, देयर कुड बी सम फाइट्स दैट टेक प्लेस। और फिर बच्चों लोग 18 साल के बाद में जब आपका स्टडीज खत्म होगा तो उसके लिए तो पूरा जिंदगी पड़ा है ना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है तो। सो प्लीज डू नॉट मिक्स इलेक्शंस विथ स्टडीज, और इसलिए हम लोग बोलते हैं दैट कॉलेज इलेक्शंस आर नॉट एसेंशियल इन जूनियर कॉलेजेस। आई होप सो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग ना। जब टॉपिक को आप सपोर्ट करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यू। और टॉपिक के खिलाफ जाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर व्यू करके। अच्छा, द थर्ड टॉपिक चिल्ड्रन दैट दे आर गिवन हियर फॉर डिस्कशन इज दैट इज सेल फोन अ नीड ऑफ द टाइम्स। चलो अभी सेल फोन के ऊपर आपको डिबेट करना है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यस, सेल फोन इज द नीड ऑफ द टाइम। अच्छा, अच्छा बोलोगे तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हो ना इसके बारे में, बोलेंगे कि like देखो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव होते जा रहा है, पूरा दुनिया मजा ले रहा है, तो हम लोग काहे के लिए नहीं। अच्छा, और सेलफोन के सहारे आई थिंक इंटरनेट वगैरह ये सब चीजें जो पहले एक डिस्टेंट ड्रीम हुआ करती थी, आज हमारे फिंगर टिप्स पे आके पहुंच गए ना।
और इंटरनेट को चलो अगर हम लोग पॉजिटिवली यूज करें तो इट्स वेयर हाउस ऑफ नॉलेज वी कैन सी चिल्ड्रन। आपके स्टडीज के लिए आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है। आज देखो बच्चों लोग इस कोविड के टाइम पे अगर आपके पास सेल फोन्स नहीं होते थे तो शायद आप अपने स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते थे ना। सब कुछ मतलब यहाँ पे क्या जीरो हो जाता था। एवरीथिंग वुड हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। एक टाइम था जब आपको बोला जाता है कि लाइक सेल फोन्स यूज नहीं करने का और अभी आपको बोला जाता है कि लाइक सेल फोन्स के जरिए आप पढ़ाई कर सकते हो। सो दे कुड बी अच्छा कभी इमरजेंसी के टाइम पे किसी को कांटेक्ट करना है। अच्छा एंड एन नंबर ऑफ यूजेस ऑफ दैट सेल फोन दैट वी हैव। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइक वक्त की जरूरत है क्या मोबाइल फोन्स है फिर सेल फोन्स। But if you want to write something against the topic, then you can say that cell phones are unnecessary for the modern times. लेकिन ये भी आप प्रूव कर सकते हो। चलो टेक्नोलॉजी जितना अपडेट करते हैं तो उसके साथ में उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। इंटरनेट का यूज में चलो आजकल पढ़ाई से भी ज्यादा गलत काम के लिए यूज किया जाता है। वी हियर अबाउट द स्कैम्स टेकिंग प्लेस, वी हियर अबाउट द इंटरनेट फ्रॉड्स दैट टेकिंग प्लेस। अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग होता है बच्चों लोग एंड दिस इज ऑल डन थ्रू सेल फोन्स। Acha, we see all scandalous videos that are being made, okay? And through cell phone children, your privacy is being attacked. आपके मैसेजेस, आपके चैट्स, चलो आपके फोटोज ये सब कुछ जो है वो रिस्क पे है क्योंकि कोई भी उसको एक्सेस करता है। हम लोग ये सब चीजें गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रखते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि किस किस के हाथ में जा सकता है और उसके सहारे क्या किया जा सकता है। बिकॉज द वर्ड इंटरनेट जैसे आपने सुना रहेगा डार्क नेट होता है ना। यस बिकॉज मेनी ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड दैट इज व्हाई वी से दैट सेल फोन्स अगर नहीं होते तो अच्छे होते थे। जब नहीं थे तो भी हम लोग सर्वाइव करते थे तो अगर अभी नहीं रहेंगे तो भी हम लोग सर्वाइव कर लेंगे मरेंगे नहीं। और जो डी वाला पॉइंट दिया है चिल्ड्रन आपको डिस्कशन के लिए दैट इज शुड द अर्थ और सॉरी शुड द अर्न एंड लर्न कॉन्सेप्ट be made mandatory for students। मतलब अर्न एंड लर्न का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी करना चाहिए क्या। कमाओ और सीखो। मैनी ऑफ द टाइम चिल्ड्रन यस लेट्स सी अगर हम लोग व्यू की बात करें तो बोले कि हाँ अर्न एंड लर्न कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करना चाहिए। इन फैक्ट इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स। रीजन चिल्ड्रन क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम चिल्ड्रन अगर हम लोग टी वाई बी कॉम तक का पढ़ाई करते हैं तो आप सबको पता है वी ऑलमोस्ट रीच एज ऑफ समवेयर अराउंड फॉर एग्जांपल 21 years। तो बात ये आती है बच्चों की लाइक 21 years तक हम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा उसके बाद में जब आप जॉब के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको सवाल आता है कि लाइक हाँ हैव यू गॉट एनी एक्सपीरियंस। मतलब एक्सपीरियंस है क्या आपको लगे सर कौन सी दुकान में मिलता होगा करके। लेकिन वहीं पे अगर आपने पढ़ाई करते करते थोड़ा सा कुछ पार्ट टाइम जॉब्स किया रहता था आप थोड़ा पैसा कमाते आपको उसका वैल्यू पता चलता था। आप अपने एक्सपेंसेस को खुद हैंडल कर सकते थे। हर रोज मम्मी पापा के सामने पॉकेट मनी के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा आई वोंट अंडरस्टैंड द रियल वैल्यू ऑफ दैट वर्ड मनी राइट। अच्छा आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ जाते थे। पेरेंट्स का बर्डन कम होता था एंड वुड एक्चुअली हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चिल्ड्रन एंड दैट इज व्हाई वी से अर्न एंड लर्न कॉन्सेप्ट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स। बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन अगर आप काउंटर व्यू की बात करें तो बोलें कि लाइक नो एब्सोल्युटली नॉट। लर्निंग इज अ प्रोसेस चिल्ड्रन वेयर चिल्ड्रन ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। अच्छा they are busy into the studies and it's a फ्यूचर बिल्डिंग एक्टिविटी चिल्ड्रन वी कैन से। अगर आपको काम ही करना है तो फिर और पैसा और काम ये सब चीजें बीच में आ गई तो फिर आप सबको पता है स्टडीज विल टेक अ बैक सीट एंड यू वोंट बी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीज। तो बच्चों लोग स्टडीज खत्म करने के बाद पूरा जिंदगी तो पड़ा है ना कमाने के लिए काम करने के लिए। तो बचपन थोड़ा सा मस्ती के लिए थोड़ा सा स्टडीज के लिए थोड़ा सा आई थिंक लाइक खेल कूदने के लिए यू जस्ट वांट टू एंजॉय दैट चाइल्डहुड। सो वी डोंट वांट चिल्ड्रन टू पुट इनटू द बर्डन ऑफ वर्किंग एंड अर्निंग मनी। सो इट विल एक्चुअली नॉट सर्व द पर्पज ऑफ चाइल्डहुड। मतलब बचपन का फिर मतलब निकल जाएगा। अच्छा तो योर चिल्ड्रन आई होप सो यू अंडरस्टूड कि लाइक हम लोग किसी भी टॉपिक को लेके उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन वी कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर एग्जाम में आपको एक टॉपिक दिया जाता है ठीक है एग्जाम में अगर आपको टॉपिक दिया जाता है कि लाइक कोविड के 19 के टाइम पे लॉकडाउन इज कंपल्सरी आपको बोलेंगे कि इसका काउंटर व्यू लिखो तो आप अगेंस्ट में लिखोगे सर लॉकडाउन करके कुछ मतलब नहीं है। अच्छा अगर आपको व्यू लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या कर सकते हो फिर बोलने का कि लाइक हाँ लॉकडाउन इज वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू
कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। तो आप किसी भी टॉपिक को लेके, और एक टॉपिक आता है बच्चों लोग कि बुक्स को डिजिटल करना चाहिए क्या। आज अगर हम लोग सब कुछ डिजिटल पढ़ रहे हैं तो सवाल ये आता है कि लाइक टेक्स्ट बुक्स खरीद के क्या करें। अगर गवर्नमेंट सब पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करेगा तो उसमें से भी हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं ना। हाँ, तो शुड डिजिटल लर्निंग बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, और फिजिकल लर्निंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय डिजिटल लर्निंग, इसके ऊपर भी हम लोग बहस कर सकते हैं बच्चों लोग, राइट। अच्छा, अब इस टॉपिक का अगला हिस्सा जो आएगा चिल्ड्रन, इट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू कि लाइक आइडियाज को एक्सपांड कैसे किया जाता है। एग्जाम में ज्यादातर आपको जो एक्टिविटीज दिए जाते हैं चिल्ड्रन, आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू कि एक आध प्रोवर्ब दिया है आपको। प्रोवर्ब वुड बी चिल्ड्रन लाइक ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, ऐसे एक सेंटेंस दिया आपको, और फिर आपको बोला कि उसके ऊपर पैराग्राफ राइटिंग करना है। तो हाउ विल यू बी एबल टू डू इट आउट चिल्ड्रन। या फिर क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और आपको बोला कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो। तो चिल्ड्रन पैराग्राफ राइटिंग मतलब एक छोटा सा सेंटेंस दिया है और हम लोग वो आइडिया को एक्सपांड करने वाले हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चिल्ड्रन दैट इज आल्सो एन एग्जांपल जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ना। क्विटर्स आर नेवर विनर्स, मतलब जो लोग ट्राई करना छोड़ते हैं वो लोग जिंदगी में कभी जीतते नहीं है करके। ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं चिल्ड्रन। क्या होता है, बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं जिसको हम लोग एक एक पेज, दो दो पेजेस भर के उसके बारे में आइडियाज को एक्सपांड करते हैं। सो इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन आई विल एक्सप्लेन टू यू कि मैं पहले इसका थियोरी पढ़ाऊंगा, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज क्या होते हैं, ओके उसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, फिर मेन कंटेंट को कैसे इंक्लूड करने का। अच्छा, उसके साथ में चिल्ड्रन वी ऑल्सो कम टू वन पार्ट इन विच उस पैराग्राफ को कंक्लूड किया जाता है, मतलब एक इंट्रोडक्टरी, फिर एक मेन पैराग्राफ और एक कंक्लूजन पैराग्राफ चिल्ड्रन। ठीक है, उसके साथ में अगर कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा तो उसके ऊपर हम लोग फिर पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं, राइट। अच्छा, now whenever we come across these writing skill children, तो आपको एग्जाम में राइटिंग स्किल्स को हमेशा कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये थियोरी, और इस थियोरी के साथ में एक आध दो टॉपिक को किस तरीके से एक्सपांड किया जाता है, I'll teach you that in the coming lecture children. Okay, so that's all for today. You just remember that I have given you one activity। सीजन वर्ड से रिलेटेड कोई भी, सीजन से रिलेटेड कोई भी वर्ड्स ले लो आप। क्या करना है, सीजन वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्ड लेना है और उसके साथ में आप अपने खुद के सेंटेंसेस बना सकते हो कभी, राइट। ओके, इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन आई विल टीच यू हाउ टू एक्सपांड द आइडिया, जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स का टॉपिक रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट lecture with more writing skill topics. Bye everyone.